कैसे हैं आप लोग? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ए टॉपिक ऑन द क्राइम अगेंस्ट वुमेन। आज हम बात करेंगे क्राइम अगेंस्ट वुमेन के बारे में और एक टॉपिक को हम सजेस्ट कर रहे हैं जिस पे हम डिस्कशन करेंगे। वो टॉपिक है जो वुमेन से ही रिलेटेड है कि जो क्राइम आज के टाइम में वुमेन से रिलेटेड हो रहे हैं उसमें इस सेक्शन का, इस प्रोविज़न का क्या इम्पोर्टेंस है। तो आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 125 सीआरपीसी के बारे में। What is the need of section 125 CRPC that is more important than what is a section 125? First of all, we are going to discuss about why section 125 is necessary for women who are going to be exploited by husbands. Firstly, I want to clear that one thing. Section 125 is the provision where the wife, parents and minor child who want a care from his guardian. I mean to say that the guardian once means that here's the child whose father and parents whose beloved father needs a maintenance from his son, father and son. And third is that wife. Wife is going to be maintained by a husband by this provision. Why there is the need of one section 125 CRPC? Firstly, I want to say that in 1975 this section 125 is very highlighted due to a case which is very highlighted, which is a case is Shah Banu. Everyone knows that very highlighted and tram-lighted case is that Shah Banu versus Muhammad Ahmad Khan. In this case, at 63 years old, 53 years old, I think that was divorced by his husband at the age of 63, just because of some silly mistakes between them. So we have to find out that section 125 CRPC is only for that kind of situation when husband and wives with not recommended to stay together with a big solid reason for separated with each other. 125 CRPC ये कहता है कि अगर वाइफ एंड हस्बैंड एक दूसरे से अलग होते हैं म्यूचुअल कंसेंट से, देन there is a alimony which do not need a maintenance of monthly in 125 CRPC, which exceeds not more than 500 rupees. Then if husband and wife is going to be disputed and there is a reason
which they are loved separated with each other, then wife want maintenance from husband and she is going to file a petition on the procedure of section 126 CRPC and file a suit in family court for maintenance. Then what is the kind of maintenance is that we have to going to find out. If husband going to exploit his wife and his wife does not want to live with us, then she has a solid reason to left behind with his husband and ask for a maintenance. If there is not a solid reason for leave separate, then there is no any maintenance given by husband through the order of magistrate. यहाँ पे पति पत्नी अगर एक दूसरे से अलग रहते हैं तो सेक्शन 125 CRPC ये कहता है कि आपके पास कोई एक ठोस वजह होनी चाहिए कि आप एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते या पत्नी जो है पति के साथ नहीं रह सकती। देन इस कंडीशन में ये है कि अगर पत्नी अपनी जीवन निर्वाह के लिए यानी गुजारा करने के लिए कैपेबल नहीं है, तो उस सूरत में हस्बैंड विल बी एप्लीकेबल फॉर दैट, यानी उस सूरत में हस्बैंड की लायबिलिटी बनती है कि वो गुजारा भत्ता दे, मेंटेनेंस दे। तो ये तो वुमेन्स की क्राइटेरियाज हैं कि ऐसी महिला जो पढ़ी लिखी नहीं है या खुद कमाने और खुद काम करने में सक्षम नहीं है और इस बात का उनके पास एक ठोस कारण है जिस कारण से वो अपने पति के साथ नहीं रह सकते, एक साथ नहीं रह सकते, तब इस कंडीशन में ये प्रोविज़न है कि वो अपने लिए गुजारा भत्ता मांग सकती हैं और गुजारा भत्ता उन्हें मिल सकता है इस प्रोविज़न के तहत। सेक्शन 125 CRPC 3 लोगों को कवर करता है, हस्बैंड एंड वाइफ, पेरेंट्स एंड माइनर चाइल्ड, यानी नाबालिग बच्चे जिनके ऊपर अपने माँ बाप की लायबिलिटी बनती है कि वो उनको पाले, उनको गुजारा भत्ता दे, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो। सेकंड, ओल्ड पेरेंट्स जो बूढ़े हो चुके हैं, कमाने के लायक नहीं हैं, सक्षम नहीं हैं, ऐसे लोगों के लिए सेक्शन 125 CRPC में ये प्रोविज़न है कि वो अपने बच्चों से गुजारा भत्ता मेंटेनेंस ले सकते हैं। अब वाइफ को कब मेंटेनेंस नहीं मिलेगा ये देखना है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि मेंटेनेंस ना मिले? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, उनको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। इफ वाइफ विल बी लीव्ड इन एडल्ट्री विथ समवन रेगुलरली, अगर पत्नी जो है वो किसी व्यक्ति के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में रह रही है और इस बात का प्रमाण हस्बैंड के पास है, तो वो मेंटेनेंस देने से इनकार कर सकता है और इससे संबंधित न्यायालय जो है मेंटेनेंस को खारिज कर सकती है। फर्स्ट ये। सेकंड, ये अगर उसने दोबारा शादी कर ली है, इफ ही वॉज रीमैरिड अगेन,
अगर दोबारा शादी कर लेती है तो वो हस्बैंड से जो उसका रिलेशन था उससे वो मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं होती है। यहाँ पर ये कंडीशन बनता है। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग छुप के शादियाँ कर लेते हैं। ऐसे कंडीशन में ये होता है कि अगर इस बात का प्रूफ या प्रमाण मिल जाता है तो उनकी 125 CRPC के अंदर जो मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता जो बना है वो खारिज हो जाता है, रद्द हो जाता है। अब वैसी जो डाइवोर्स्ड होती हैं और बिल्कुल भी सक्षम नहीं होती हैं उनके लिए ये सेक्शन 125 CRPC का प्रोविज़न है ताकि वो अपनी ज़िंदगी बेहतर हालात में गुजार सकें और अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकें। क्योंकि दिस केस द रिलेटिव केस इज़ दैट शाहबानो वर्सेस मोहम्मद अहमद खान 1975 का ये केस बहुत ही हाईलाइटेड केस है और इस केस में इसी चीज़ के लिए जद्दोजहद की गई थी पत्नी के द्वारा। क्योंकि पत्नी जो थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी और उनके 5 बच्चे थे और वो उनका गुजारा नहीं कर सकती थी। शी नीड्स ए मेंटेनेंस। देन ही fight a long journey in the judicial, then he was taken relief by the Honorable Supreme Court। एक लंबी लड़ाई के बाद शाहबानो को न्याय मिला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। वो अलग बात है कि वो कानून संसद में कानून बनाने के बाद उस आदेश को निष्क्रिय कर दिया गया। ये इट डजेंट मैटर, इट इज़ ओनली रिलेट्स ऑन दैट सेक्शन 125 CRPC क्यों ज़रूरी है। वैसे लोगों के लिए ज़रूरी है, वैसी महिलाओं के लिए ज़रूरी है जो बिल्कुल भी असहाय होती हैं, निर्बल होती हैं, अबला होती हैं। तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन के इस सीरीज़ में हमने सेक्शन 125 देखा और हमने एक और चीज़ आपको जाते जाते ये बताई है कि इसका प्रोसीजर जो है वो सेक्शन 126 में है। सेक्शन 126 CRPC में इसका प्रोसीजर है कि किस तरीके से मेंटेनेंस लिया जा सकता है, व्हाट इज़ द प्रोसीजर। और अगले लेक्चर में हम इस चीज़ के बारे में फुल डिस्क्रिप्शन विथ ए डॉक्यूमेंट्री पिटिशन फाइल एक मॉडल प्लेंट बनाएंगे और उसको मैं अपलोड करूंगा, आपके सामने ड्रॉ करूंगा उस प्लेंट को एज ए मॉडल प्लेंट फॉर सेक्शन 125 CRPC। तब तक के लिए चलते हैं और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें और बताएं आपको कैसा लगा। और हमारे YouTube चैनल माई लीगल अड्डा को ज़रूर सब्सक्राइब करें और पसंद करें और जो आपकी राय हो वो ज़रूर दें। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।